Good. You're going live. Go live. Yep. Mhm. Hold on. A couple of minutes. Stream health and yeah. We are there, we are live now. Hello everyone, namaste. Those who are joining, good, thank you for joining in. And we are going to do today something called as convolution theorem. So I'll wait for a few minutes for people to join in and we will start soon. So yeah. So those who are joining in, let's see those who are there. Fine, we will handle with that. And those who are joining later, it is good. You can watch them, watch the videos later, but participation won't be there. So live class, it would help you as much as it can help you. So let's see. Yeah, we'll wait for a few minutes. So I'll just write here. Hi. So hi. We'll wait for 1 minute. Okay, and begin convolution theorem for Z transform. Cool. Let's wait for a minute and let's see if anybody is there. Hello. And yeah, कोई आ रहा है तो it is fine. If they are not there, then they can watch later. We'll do our part. Let's see. Okay. No. Yeah. Well, we'll be there here. We'll begin soon. Yeah. So there are people joining in. If you are joining in, please write something in chat so at least I can converse with you. Otherwise it's okay, no problem, but at least I can know people are there and they are watching or they are writing along with me. So convolution theorem, that's what we have decided to do today. I hope the idea of solving Z transform as well as the inverse Z transform is clear. So inverse Z transform, we have seen one stage in which how to use partial fraction, or much broader method name would be making a linear combination of the given function into the terms of the known Z transform. Okay,
So linear combination of known z transforms you have to do, and then it would be good thing. So yeah, you have that. Yeah, yeah. So the first thing over here you need to know is, the main thing is that when you do inverse z transform, there are types going to come into the picture. So the first thing for inverse z transform, there are different methods are there. The first method I would suggest is you do by partial fraction. So partial fraction is just a very basic method when you talk about it, but always remember its name would be, better name would be linear combination of known z transforms. This would be a better answer, better name. This is better, okay. This is anytime better name, because that gives you the clarity. Partial fraction, all the time you have a notion in your mind. Second method we have seen for inverse z transform, in this itself we are going to see one, and the questions that we have seen are without ROC. Sorry, the questions that we see are without ROC, and these are one type I can say in this, and with ROC I will deal with them in a later stage. After the convolution theorem, we would be seeing those kind of questions also with ROC, how to handle them. And today we are doing convolution method. Okay, now this second method which is there, which is very popular under all types of z transforms, I mean to say all types of transform. Z transform is no different here. So you see that in Laplace, Laplace inverse you saw every time, so here also you would see in z transform, because Laplace and z transform are slightly related, you know. It's more, z transform is more of a less a discrete Laplace transform, something similar. I won't go into that detail also, but yeah, it is very much related. So now let us move on to something what is called convolution theorem. So convolution theorem for, sorry, for z transform. Convolution theorem for z transform. Now this theorem will help you to get the hold of the entire topic. Okay, now there are many notions are there, but I will, you know, filter out. I'll give you the main statement initially, but we will filter out the maximum of the things and take the gist of it and go ahead. The later the things and all which are involved, they are mainly for the mathematical precision. So if I say here like this, so I'll give you the statement. ओरिजिनल स्टेटमेंट आप लिख लीजिए तो आपको यहाँ पर आसान पड़ेगा. The statement is the first one: let f of n and g of n be any two sequences
let z transform of f of n be denoted by capital F of z, and z transform of g of n be denoted by capital G of z. Yeah, so in this case what you will have is, and then there is more is there, that when the, and we can say that this, let this happens provided provided f of z exists in the region mod z greater than 1 upon r1, and g of z exists in the region mod z greater 1 over mod of r2, or yeah, the mod if you take it's fine, otherwise it's still the radius itself. So then the statement main portion comes into the picture, that it says the convolution, it says that the convolution z transform of f of n star g of n is same as the f of z dot g of z, dot meaning multiplication over here, so that star gets converted into dot. Okay, and here the condition is that mod z is greater than 1 upon r, 1 upon r, or you can just keep it r, where what is r? R is going to be the maximum of, okay, maximum of 1 upon r1 over 1 upon r2, whatever is the one which is maximum. Now this is the main statement of convolution theorem, but now we need the definition. What is the definition of convolution over here? So let us understand that. So now comes many important pictures. So now you can write down these notes. Now note that number 1, z transform of f of n star g of n is equal to z transform of f of n multiplied by z transform of g of n. This is another observation, because students are not very familiar with the notations properly, and then they make a lot of mistakes in examination, and then they think it is something out of, you know, blue moon it has come, and then, you know, a lot of mistakes get created, and a lot of wrong assumptions people develop regarding notations. So please be very careful, and it is this notation itself which is f of z dot g of z. Okay, so there is no difference, but it is just a kind of clarity which you can get over here. Now, so this is z transform of f of n star g of n. Okay, now this we know now that z inverse operator is also there.
So if I want to take z inverse, so second thing, so for this will be useful for inverse, for in for z inverse. Okay, for z inverse we will have f of n star g of n. Okay, f of n star g of n is equal to z inverse of f of z dot g of z. Okay, you just have to take the z on the other side, that is what it will give you. Now if you observe the main definition, because f of n is nothing but the inverse of that, so there is an alternate version, or you can still write much technical way. Sometimes these kind of questions appear into the MCQs and all, so students don't understand what are these notations talking about, but then you have to be very clear while writing. This is z inverse convolutions of z inverses of these original answers. It's same like this. So f of z g of z. Now I can tell you one simple thing over here. There is an English connected to the mathematical notation. Well, this is very popular in mathematics. Most of the teachers do this, and so sometimes I too do this. So you have to learn to connect the English language to the mathematics and the mathematics to English. So what is it here is that you can write this in English is that the Z transform of convolution is convolution of two sequences is the product of Z transform of individual sequences. This is what it means, the first statement. And what about the second statement? It would mean the reverse way around, right? So Z transform of inverse Z transform of this, so you can frame that sequence on your own. So but that won't come, but then still you can try out. So it's the convolution of the individual sequences, right? So that is what is important. Now let me define what would convolution look like for Z transform. So we define now what is convolution of sequences, convolution of sequence. So you have fn, let fn and g of n be two sequences. Okay, and now what does the convolution mean? So f of n star g of n means that you are going to take a summation, okay, over the function. Now the function, this is very popular, you can take it f of k into g of
n minus k you can take, where k is running from 0 to n. This way you can write. Some books also write in some another manner. I avoid it because it sometimes creates a difference of notation and it becomes very difficult for students to digest the fact, and they confuse themselves. So I don't want to go into that detail too much. Problematic it would become. What I would also suggest here, that you must know the following properties of convolution, because convolution is as an engineer or as a mathematics student, it is very very important that you know these things. Okay, let us just bifurcate what does this thing try to tell us. So when you are taking the convolution of the two functions over the n and k or something like that, then what is the meaning over here? It means that you are taking your runner from 0 to n, so it is going to become f of 0 g of n, then it is f of 1 g of n minus 1, plus dot 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 so on. You will have f of n g of 0. Okay, this is what it will land you on. Okay, now if you see, then there is one more version possible in the definition. uh, I'll just then, okay, and in mathematics most of the time whenever you see this colon and then equal to, it means it's the definition. Okay, so yeah, that's the definition. So there is an alternate version of the definition I'll give you here. Alternate version is f of n star g of n. This gives you summation. Instead of writing f of k first, you can write f of n minus k g of k. That is also the same. There is no difference in either of the format of the definition. They are both going to give you the same answer. Okay, so this is one thing. Now there are few small properties related to convolution. If you know them, it is very good thing. As an engineer or as a mathematician, you must know. Engineers, I would say, they must know this property a lot. Mathematicians figure out them hard way. So yeah, but yeah, never mind, you can get it done. But sure, let me give you and ease your work a bit. So here the first thing is f of n. First property, f of n star g of n. You can take down, this is property of convolution of two sequences. Sequences f of n g of n. Sorry. I have not yet recovered from the cough, but yeah, I'll complete the work. So f of n star g of n, if you have, so it is same as g of n star f of n. Okay, that's what it means. So the name of this property is star is commutative. Commutative. Okay, commutativity is satisfied over here. Another most important property, I would say, that I don't know whether any of the examples in the initial stage that you encounter would, you would use, but yeah, this works. If you have another third sequence, say let some h of n be another sequence,
another sequence, then you can do f of n star g of n star h of n equals to, and this name would be star is associative associative um, associativity t associative, yeah, yeah, associative, yeah, this would be the spelling. Okay, yeah, sorry for the cough, I'm extremely sorry, but yeah, this is how the we have right now the associative property. And then there is a one more property which is very important. It is the distributivity property. You can do left hand distributivity as well as the right hand distributivity, because it's commutative and it would work. So this is distributivity. So if you have the sequence in this format, you rather than saying u of n, you can take it as f of n plus g of n star h of n. If you have, then this works, f of n star h of n plus g of n star h of n. Yeah, this works, and this property is called distributivity property. Rather, it is the right hand distributivity. You can do left hand also, okay? Left hand distributivity will also be there. So star is distributivity over binary addition, okay, over plus. So this is what the properties are. So you can handle this, and yeah, it is associative and commutative and it works. So that's how convolution is, and the sequences can be formulated and it works. So later on you can put those notations here. I'm not being very strict on it, but then if you want to be like that, extremely strict, then you can put these notations here, and that won't bother at all, right? Because these are sequences. Just a minute. Okay,
Yeah, so we are back and let us do this. Complete the work over here, and this is the property of convolution of two sequences that I have given you. You can manage them. I don't think so anyone will ask you the proof unless you are, getting into the pure hearted mathematics. Otherwise it's fine, you can work out, because these are at so advanced level you encounter z transforms, and also somewhere it is understood that the transform theory and the convolution and the mathematical notations, so that's not a big problem. Okay, now let us take up questions which are very important and which will help us to understand the theorems and the other part. One important thing that I wanted to share with you is a few formulas that will be guiding us throughout, and this one would be very, very helpful to us. So let us see. That formula is this one. We write down this formula because this formula is related to GP. Okay, and it will help us. So if we have some important, I'll give you this important formulas because these we would encounter again and again. The first formula is this: if A and R, okay, are real numbers, and R is not equal to 0, then summation A times R to the power J, if you want to call, it's okay, then J runs from 0 to N. Okay, J running, I'll rather J will take K. The K would look nice, or let's say some another alphabet would be good, because J, whenever it comes for engineer, it would look like some you know uh, so A power K, then this formula turns down to be A times R to the power n plus 1 minus A over R minus 1. Okay, this is the formula where R is not equal to 1, and other way around it would be n plus 1 times A when R is equal to 1. So this is the first important formula that I would like to give you. This is going to be used in the sessions that we are going to see, and this has very simple combinatorial proof. You can manage the proof on your own. I won't go into it because this is related to geometric progressions, but yeah, we would need it, so I'll give you over here at ready handed. Another important example that we would need is sum of first natural numbers. Sum of first n natural numbers. If we take 1 plus 2 plus 3 plus and so on, plus n up to n, then it is going to give us as n into n plus 1 divided by 2. This is the total. Okay, so mathematically you can write this as summation. If I take k going from, even if you take 0 it won't bother, but then it is better to keep it from 1 to
n, then if you add 0 it won't affect much, but then I would keep it clear over here that first n natural numbers, okay, k running from 1 to n, then it is n into n plus 1 divided by 2. This is one very important formula that you will encounter. Okay, I'll have it here, or is it visible? If any one of you are there, then you let me know if you find it visible or not, because if it's hiding behind the camera, or then oh yeah, the 2 is hiding behind the camera, so I'll just write it again in the back, the next slide. So the formula is 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n is nothing but n into n plus 1 by 2, right? And it is summation k running from 1 to n, which is the same. Okay, that's what it is. You can write this as n into n plus 1 by 2. Now there is one more formula which you may encounter again and again, which is the following. The third one is 1 square plus 2 square plus 3 square and up to n square. If this is the formula, if you want to write, then it is the sum of the square of the first n natural numbers. So then this is n into, it is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay, you can get this, and so this is summation k square, where k is running from 1 to n, and then it is going to be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. The fourth formula is my favorite one. I like this formula a lot. It's cubes. So 2 cube, 3 cube, so on up to n cube. If you want to do, you don't need to remember, it's just square the first formula. If you square it, you get the answer. So for cubing you don't have to do too much. So you write down this. I was just checking out with my work which I had done, so some of the comments were there, and I was seeing that. Okay, yeah. So yeah, so how do you go about this is here. It is going to be n square n plus 1 the whole square over 4. So this is the answer that you will need. Okay, so you just have to square that, and that will give you the cube. K cube is k going from 1 to n, and n is this here. Okay,
Now note here that even if you add a 0 cube, okay, it won't make a difference. So if you start your runner from 0 also, it's not gonna make a big difference in the whole answer. Not a big, not a very big difference, but yeah, you be very careful while going about it. So let us see now how to go about the questions related to uh, inverse Z transform. So let us take up this question. So the question is, using convolution theorem, find the Z inverse of Z square divided by Z minus 1 Z minus 3. This is the question that is asked to us. So how do we go about it? That's now our question. So firstly, the first thing, try to observe the question as a two different uh, Z transforms of some function. So I can now say here that given that Z square over Z minus 1 Z minus 3, this can be seen as Z over Z minus 1 into Z, um, wait a minute, yeah, it can be seen this way, Z over Z minus 1 टाइम्स Z ओवर Z माइनस 3. इसको इस तरीके से आप देखिए. तो अब ये दो z ट्रांसफॉर्म्स है किसी तो फंक्शन के, तो हमें हमारा फॉर्मूला जो याद आना चाहिए इस टाइम पे, तो फॉर्मूला याद आएगा हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n व्हेन a इज़ पॉजिटिव. तो हमने लिखा है z अपॉन z माइनस a लिखा है इसका आंसर. तो हम अब वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. तो पहला वाला हो जाएगा 1 का 1 टू द पावर n, और ये दूसरा आंसर है 3 टू द पावर n का, राइट. सो हियर वी नोट दैट. सो लेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ z. ओके, तो ये अपने इसको f ऑफ z इंटू जी ऑफ z नाम दे दो, एंड देयर फॉर f ऑफ n इज इक्वल्स टू z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस 1. ओके, ये हो गया. अब यहाँ पर आएगा 1 टू द पावर n यानी 1, एंड यहाँ पर आप बोल सकते हो लेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ n बी z ओवर z माइनस 3 विच इज g ऑफ z. अगर आप ऐसे बोल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ n इज इक्वल्स टू z इनवर्स ऑफ z अपॉन z माइनस 3. अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टू द पावर n. अब यहाँ से हम आगे कैसे जाएंगे, आगे जाते समय हमें यहाँ पे याद रखना है हम लोग को कॉन्वोल्यूशन थियोरम यूज़ करना पड़ेगा. तो कॉन्वोल्यूशन थियोरम क्या कहता है, z, अभी देखिए हमने यहाँ पर ये जो वर्जन्स लिखे थे ना, वो वर्जन्स हमको काम आएंगे. तो अब हम लोग के पास f ऑफ n स्टार हमारे पास दिया हुआ वर्जन ये है, वी हैव बीन गिवन दिस. हम लोगों ने f ऑफ n और g ऑफ n ढूंढ लिया है, अभी उनका स्टार करना है हमको, बस उनका कॉन्वोल्यूशन लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आपको इधर n क्यूब n स्क्वायर n प्लस 1/4 ये लिख सकते हैं.
तो अब हम लिखते हैं बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम कॉन्वोल्यूशन थियरम से हमको क्या मिल जाएगा कि z इनवर्स ऑफ f of z g of z is equal to f of n star g of n, ये मिलेगा। therefore z इनवर्स f of n star g of n बेसिकली हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है z स्क्वायर ओवर z माइनस वन z माइनस थ्री, और अब ये करने को कह रहा है 1 टू द पावर n स्टार 3 टू द पावर n, अगर ऐसा ही माने तो। पर अगर आप डेफिनीशन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो डेफिनीशन के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा हमको, हमको लिखना पड़ेगा समेशन समेशन आ जाएगा। समेशन क्या आएगा, समेशन f ऑफ k g of n minus k going from 0 to n। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारी सीक्वेंस आई है। तो समेशन जब हम करेंगे, समेशन करते समय अब क्या होगा, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, और f ऑफ k है 1 टू द पावर n, n के बदले आएगा k इंटू 3 टू द पावर n माइनस k आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें कि 1 है, 1 पावर के तो 1 ही होना है, उसका कोई बात ही नहीं है। अब हम इसको पूरा कितना ही लिखे, 3 रेज टू n माइनस के, अगर इसको कितना भी हम लिखते जाएं और इसको एक्सपांड करें तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 3 रेज टू, पहले जैसे ही k 0 होगा तो 3 रेज टू n मिलेगा, फिर मिलेगा 3 रेज टू n माइनस वन, प्लस यहाँ से मिलता जाएगा हम लोगों के पास 3 रेज टू n माइनस टू, ऐसे करते करते हमारे पास 3 की एक पावर तक आ जाएगा, फिर 3 रेज टू 1 आ जाएगा और 3 रेज टू 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास बनेगा 3 रेज टू n, 3 रेज टू n माइनस वन, 3 रेज टू n माइनस टू, ऐसे करते करते हुए 3 स्क्वायर, 3 रेज टू 1 और 1, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला लगने का पूरा हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया है। ए रियल नंबर है और आर भी रियल नंबर है, पावर में कोई के है, तो क्या करना है, अब ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से ए 1 है तो 1, 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 माइनस r माइनस 1 था, तो r माइनस 1 के लिए 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो और आपको ये पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। अभी हम आगे के पार्ट पे काम करते हैं। चलिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कॉन्वोल्यूशन से करना है, तो कैसे करेंगे, तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग
convolution theorem, find z inverse of z square over z minus a the whole square. अब ये भी पहले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा जनरलाइजेशन है. पहले में ए था और यहाँ पर 1 और 3 थे. अब वहाँ पर 1 और 3 के बदले सेम नंबर्स आ गए, तो उसका थोड़ा जनरलाइजेशन है. अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले फंक्शन देख लीजिए. तो गिवन तो z स्क्वेयर अपॉन z माइनस ए द होल स्क्वेयर. तो इसको आप z इनवर्स z माइनस ए z अपॉन z माइनस ए इस तरीके से देखने का ट्राई करें. अभी ये दोनों का किसी फंक्शन के हमारे इन्वर्सिस है. जैसे हमको मालूम है ये दो फंक्शन z ट्रांसफॉर्म्स है किसके? a टू द पावर n के. तो a टू द पावर n ही आएगा, बराबर. तो अगर हम नोटेशन वाइज अगर इसको लिखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेट, दोनों सेम है, तो लेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n. यहाँ पर आपको ये बेसिकली अंदर f ऑफ z ही है. ये f ऑफ z है, ये भी f ऑफ z है, सेम है दोनों. ऐसा आप लैप्लास में भी कर चुके हैं पहले. तो अगर आप यहाँ देखें, लेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ z. तो यहाँ पर f ऑफ n का मतलब होगा z इनवर्स ऑफ कैपिटल F ऑफ Z. अब इसका मतलब क्या हो गया? Z इनवर्स कैपिटल F ऑफ Z. F ऑफ Z कौन बना है? हमारा Z अपॉन Z माइनस ए. तो Z अपॉन Z माइनस ए लिख दीजिए. आपको यहाँ पर a टू द पावर n आंसर मिल जाएगा. अब हमें बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम लिखना पड़ेगा कि बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम z transform, z inverse transform of f of z, f of z जो हमने लिखा है स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर ये इधर लिखा है ना, ये उसका आंसर क्या बन गए? वो बनता है f of n स्टार f of n. अभी ये क्या बात हो गई? f of n स्टार f of n. तो अभी आपको इतना कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है उसमें कोई भी. इसका मीनिंग लिखिए. इसका मीनिंग क्या आएगा? इसका मीनिंग आएगा समेशन f of n के बदले क्या आएगा? f of k, और यहाँ पर आ जाएगा f of n माइनस k. k गोज़ फ्रॉम 0 टू n. ये अगर आप समझ गए तो आपको ऑलमोस्ट कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती. अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर आएगा आपके लिए यहाँ से समेशन. आप अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे f ऑफ n f ऑफ k के लिए, तो a टू द पावर k, और यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर n माइनस k, वेयर k इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू n. तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि z इनवर्स हमारा जो है मेन क्वेश्चन, z स्क्वायर ओवर z माइनस ए द होल स्क्वायर, ये बन गया है समेशन a टू द पावर. लॉज ऑफ इंडाइसिस के वजह से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी. ये हो जाएगा समेशन a रेज टू n k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, बराबर. तो ये तो काफ़ी आसान हो गया. तो
लॉज ऑफ इंडाइसिस ही है यहाँ पर तो। और k गोइंग फ्रॉम 0 to n। अगर अभी कोई बच्चा कहता है कि मुझे नहीं आता ये कैसे लिखना है, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको टेंशन करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि अब a टू द पावर n आया है। देखिए k इज गोइंग फ्रॉम 0 to n है, और यहाँ पर a टू द पावर n मतलब रनर है ही नहीं, मतलब 1 आपका चलेगा, के चलेगा, 0 से चलते जाएगा। अब आपका फॉर्मूला जो आपको दिया गया है इधर, यहाँ पर ये वाला आपका r यहाँ पर 1 है, तो जो r आपका 1 है आपको वो लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला में सेकंड हिस्सा है आपका जो यूज़ हो रहा है, समेशन a इंटू आर रेस टू के। अब a की जगह पर आपको a टू द पावर n है, और r के जगह पर आपको 1 है। ओके, तो आपके पास a की जगह पर a टू द पावर n है, और r की जगह पर आपको 1 दिया गया है। तो ये कैसे करेंगे, आपका फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, आंसर हो जाएगा n प्लस 1 इंटू ए टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो n समेशन को बाहर ले लीजिए, k गोइंग फ्रॉम 0 टू a टू द पावर n, समेशन को साइड में रख के वो लिख दो। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, k चल रहा है इतने सारे नंबर्स के ऊपर, मतलब कितने नंबर है 0 से लेके n प्लस 1 नंबर है, तो n प्लस 1 इंटू ए रेस टू n ये आता है। ये बेसिक लॉजिक है। अगर आपका यहाँ पर भी लॉजिक थोड़ा कच्चा है तो आप थोड़ा को इतना हार्ड मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है, मेहनत करिए और इसको समझिए, इसको डिकोड करें, इसका डिकोडिंग करना पड़ेगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना बता सकता हूँ, 1 + 1 + 1 1, n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा, और क्या है। और ये इतना ही हो बता सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 0 टाइम का है, ये 1 टाइम का है, ये n टाइम का है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से समझ में आए ये वाला क्वेश्चन, और आपको थोड़े फॉर्मूलाज भी इम्पोर्टेंट पता चल जाए। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थियरम, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यू नो निचोड़ मिल जाएगा, और ये आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो देखिए, जिनको हेल्प मिल रहा है वो देखेंगे। सो यहाँ यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थियरम हम लोगों को बोला है फाइंड z इनवर्स। हमें z इनवर्स ढूंढना है इस पार्ट का, z³ प्लस z² ओवर z-1 होल रेस टू 5। अब ये थोड़ा अजीब हो गया हमारे लिए कि ये कैसे करेंगे, पावर 5 चली गई। तो पहले तो पावर 5 देख के ही आधे बच्चे गिव अप कर देंगे कि ये क्या करना है, इतने इसमें तो समझ में आएगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं। पहले आप इसको देखने का कोशिश करें कि ये किसी दो जेड ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट है क्या, और होगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आंसर इसको देखिए, अगर मैं ये जो z³ प्लस z
स्क्वायर जो है ओवर z माइनस 1 होल रेज टू 5, इसको हम इस तरीके से देखने का कोशिश कर सकते हैं। अगर मैंने z बाहर ले लिया न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में बचेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड, और डिनोमिनेटर में अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, z माइनस 1 द होल स्क्वायर और एक जगह z माइनस 1 द होल क्यूब, अगर इस तरीके से मैं स्प्लिट करूं तो मेरे नोन फॉर्मूला की लिस्ट में मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये है मेरे z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला फॉर व्हेन n, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n हमने जब लिखा था तो यही फॉर्मूला आया है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ z माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये है z ट्रांसफॉर्म ऑफ z 1, ये एक मिनट, हाँ, ये है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n, ये n का है और ये n स्क्वायर का है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा याद आ जाएगा अगर, तो काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये कैसे करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि ये दो z ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट आपके सामने रखा है। तो अगर आप इसको आप f ऑफ z इंटू जी ऑफ z अगर आप बोलते हो, तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि f ऑफ z हो गया है z अपॉन z माइनस 1 ये स्क्वायर में, एंड g ऑफ z हो गया है आपके लिए z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस 1 द होल क्यूब, बराबर। अब अगर आप f ऑफ z का डेफिनीशन लगाएं तो f ऑफ z क्या होता है, f ऑफ z होता है z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n, तो ये हो गया z अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर, एंड g ऑफ z अगर आप लगाएं डेफिनीशन तो ये होता है g ऑफ n, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस 1 द होल क्यूब। अब आप इनवर्स लगा दीजिए f ऑफ n, यहाँ पर z इनवर्स अगर आप लगाएं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये n का इनवर्स है, बराबर। एंड अगर आप यहाँ पर इनवर्स लगाएं z इनवर्स ऑफ z स्क्वायर प्लस z अपॉन z माइनस 1 द होल क्यूब अगर आप करते हैं, तो आपको ये यहाँ पर भी याद आ जाएगा कि ये n स्क्वायर का इनवर्स है, बराबर। तो यहाँ से हमको दो इनवर्सेस मिल गए, तो डायरेक्टली वी आर नाउ इन अ पोजीशन कि हम ये पोजीशन पे आ जाते हैं कि z इनवर्स ऑफ f ऑफ z g ऑफ z जो है ये हम लिख सकते हैं कि वो हो जाएगा f ऑफ n स्टार g ऑफ n हो जाएगा, बराबर। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ऑफ z ट्रांसफॉर्म, या z ट्रांसफॉर्म बोलो या z इनवर्स ट्रांसफॉर्म बोलो, बात तो एक ही होने वाली है। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट लगाइए, तो कॉन्वोल्यूशन की डेफिनीशन लगाने से हमको मिलेगा समेशन f ऑफ k g ऑफ n माइनस k, वेर k गोज फ्रॉम 0 टू n, बराबर। अब ये मिल जाने के बाद अब क्या होगा, f ऑफ k हमारे पास मिलेगा, f ऑफ k हमारा
फंक्शन है n, यानी n के बदले लिखा जाएगा k। g ऑफ n माइनस के में मतलब क्या लिखना पड़ेगा, g ऑफ n है n स्क्वायर, तो हमें लिखना पड़ेगा n माइनस के द होल स्क्वायर, बराबर। ये मिल गया हमको। अब ये जा रहा है, k जा रहा है 0 से लेके n तक, k जा रहा है 0 से लेके n तक हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब हमारा रनर हम लोगों को हेल्प करेगा कि इसमें कैसे करना है। तो हम इसको थोड़ा एक्सपांड करते, क्योंकि ये k के साथ ही है तो हम इसको एक्सपांशन कर सकते हैं। तो समेशन यहाँ पर हम लोगों के पास क्या मिलेगा कि हम k इंटू एन स्क्वेयर माइनस 2n k प्लस k स्क्वेयर मिल जाएगा, बराबर। फिर k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n। अब यहाँ पर k अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k क्यूब आ जाएगा, k स्क्वायर आएगा, बराबर। तो इसको और सिंप्लीफाई करते चलिए। अब यहाँ पर क्या है, समेशन k n स्क्वायर माइनस 2nk स्क्वायर प्लस k क्यूब, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है इसका सॉल्विंग, कि अब ये क्या बनेगा। तो अब ये बन के आएगा हमारे पास समेशन k n स्क्वायर, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 2n समेशन k स्क्वायर, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। मैंने यहाँ से 2n बाहर ले लिया क्योंकि वो तो होना ही नहीं ना उसके साथ कुछ भी। और अब ये क्या है, प्लस समेशन k क्यूब, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। देखिए अब यहाँ पर वो सारे फॉर्मूला लग जाएंगे आपके जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगता है, देखिए सबसे पहले लगेगा कि n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन k रह गया, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का टोटल है, माइनस 2n समेशन k स्क्वायर, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, वापस ये हमारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का है ये। अब यहाँ पर क्या है, ये k क्यूब, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये नेचुरल नंबर के क्यूब्स का टोटल है। तो हमें तो सारे ही यूज़ करने पड़े, n स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ज़ीरो का अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी करके स्टार्ट करोगे तो भी वो कोई वैल्यू नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। अब 2n, n स्क्वायर के लिए हमने क्या क्या लिखा था, n स्क्वायर के लिए हम लिखे थे हाँ, n स्क्वायर के लिए हम लिखे थे n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 बराबर, ये था। और लास्ट वाला तो हमारा फेवरेट है, वो है n² इंटू n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4, इस तरीके से बराबर। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं तो क्या क्या आएगा, फिर वो उसमें से सिंप्लीफाई होके चला जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ दिखाई दे ही रहा है कि n² कॉमन निकल सकता है सब में से, बराबर। n² अगर कॉमन निकल जाएगा, n² कॉमन ले सकते हैं, पहले तो n² ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा n इंटू n+1/2, यहाँ से बचेगा क्या, ये 2 और ये यहाँ पर 3, तो n+1 और 2n+1/3 बच जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, n+1 द होल स्क्वायर बच जाएगा अपॉन 4, बराबर। अब यहाँ से और क्या बच सकता है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि n+1 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो n+1 को भी कॉमन ले लिया जाए, तो n+1 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा n+1 n² इंटू n+1। तो यहाँ पर मिलेगा हमको n/2 -2n+1 डिवाइड बाई 3 और n+1/4 ये मिल जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सुधार लीजिए कि कितना क्या होता है। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो n² इंटू n+1 बाहर ही रहेगा। एलसीएम ये है 2 और 4 का एलसीएम 4, और तो 12 आएगा। तो 12 यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 6n माइनस कितना आता है यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 2n+1 और यहाँ पर 3n+1। इसका सिंप्लीफिकेशन करिए तो सिंप्लीफिकेशन से हमको कुछ आंसर मिलेगा। तो n² इंटू n+1/12। अब यहाँ पर कितना आता है देखना पड़ेगा हमें, 6n माइनस 8n माइनस 4 प्लस 3n प्लस 3, यानी इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा आपके पास। मैं पीछे लिख देता हूँ, इसको मिलेगा आपको n² इंटू n-1/12, नहीं n+1/12, और यहाँ पर सिंप्लीफाइड आएगा 6 और 8, नहीं 6 और 3 9, 9 और 8 1 हो गए यहाँ पर, बराबर। तो माइनस के 8 तो 9 माइनस, हाँ तो n, और माइनस के 4 और प्लस के 3 माइनस का 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आया n² इंटू n² माइनस 1 द होल, हाँ a प्लस बी, a माइनस बी लगा दीजिए, तो वहाँ से आपको 1/12 ये पूरा फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। देयरफॉर आपका आंसर हो गया z इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ z³ प्लस z² अपॉन z-1 होल रेज टू 5 आपको मिल गया है 1/12 n² इंटू n² माइनस 1। ये आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपको मिल गया है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और अलग टाइप का था। आपको सॉल्विंग करते समय सारे फॉर्मूलाज जो आपने शायद पहले बचपन में पढ़े होंगे या काफ़ी स्कूल के एकदम बिगिनिंग में पढ़े होंगे, ये तो मतलब बिगिनिंग इन द सेंस जब आपने हायर अलजेब्रा सीखा होगा 11th-12th में, तभी आए होंगे। तो आपको आई होप ये फॉर्मूलाज सारे याद आए और आपको हेल्प हो
क्योंकि इसमें हर एक फॉर्मूला का यूज़ हो चुका है ये क्वेश्चन में, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क या 6 मार्क या 8 मार्क में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सारी नॉलेज आपकी टेस्ट हो जाएगी इसमें, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की, आपके समेशंस कैलकुलेशन की, सब कुछ ये टेस्ट कर लेता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपने यहाँ पर दूसरी ऑल्टरनेट डेफिनेशन लगाई होती तो भी आपको सेम ही आंसर आता। ओके, तो आप ये क्वेश्चन आप देखिए और ट्राई करिए। मैं आपको इसमें और एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से आपके लिए सॉल्व करके रखा है, जो आपको हेल्प कर सकता है इसमें। तो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन ऑन कॉन्वोल्यूशन थियरम, जो आपको मदद करेगा, एंड ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कॉन्वोल्यूशन थियरम पे, और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। होपफुली आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड z इनवर्स ऑफ z स्क्वेयर ओवर z-1 2z-1 बराबर। अब इन्होंने ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसान है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थियरम, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थियरम इसको करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको ऐसे दो z ट्रांसफॉर्म्स को की आंसर्स में देखने का कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा? ये है z स्क्वेयर अपॉन z-1 और ये है 2z-1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इंटू z-1, और दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इंटू 2z-1 बराबर। तो ये हो गया मेरा, किसी का तो f ऑफ z और ये किसी का तो g ऑफ z हो गया। तो देयर फॉर f ऑफ z, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है z अपॉन z-1, तो मैं जैसे ही z इनवर्स अप्लाई करूँगा f ऑफ z पे, तो मुझे मिलेगा z इनवर्स ऑफ z अपॉन z-1। तो ये मेरा 1 टू द पावर n आ जाएगा। बेसिकली ये 1 मिलता है मुझे यहाँ से। तो ये मेरा फंक्शन f ऑफ n हो गया। अब जैसे ही मैं g ऑफ z इसको z अपॉन 2z-1 लिखता हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ सबसे पहले कि z इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने z इनवर्स निकालना ही है। तो z इनवर्स होके वो आएगा z अपॉन 2z-1। तो मेरे पास तो ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं, पर मैं 2 को कॉमन ले लूँ क्योंकि वो अलाउड है। तो z इनवर्स z अपॉन z-हाफ हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा, ये हाफ टू द पावर n हो जाएगा, और ये हो गया g ऑफ n बराबर। अब हम पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम कॉन्वोल्यूशन थियरम लगा सकते हैं। तो बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम मुझे मिल जाएगा z इनवर्स ऑफ f ऑफ z, कैपिटल F ऑफ z, g ऑफ z इज सेम एज f ऑफ n स्टार g ऑफ n, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर f ऑफ n स्टार g ऑफ n का मतलब क्या है हमारा? पहले तो कैपिटल F ऑफ z g ऑफ z हमारा जो मेन क्वेश्चन है, z स्क्वायर ओवर z-1 2z-1 बराबर। और f ऑफ n स्टार g ऑफ n का मतलब हो जाएगा समेशन f ऑफ k g ऑफ n माइनस k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमको आंसर मिलेगा कॉन्वोल्यूशन की डेफिनीशन लगाकर। पहले देखिए, ये स्टेप कॉन्वोल्यूशन थियरम है,
ये वाला स्टेप जो लिखा है आरएचएस में वो कॉन्वोल्यूशन का डेफिनीशन है। थोड़ा सा इसमें संभाल के रहिएगा। कॉन्वोल्यूशन थियरम, कॉन्वोल्यूशन डेफिनीशन, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पता नहीं क्या उलझुल कुछ भी लिख के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मार्क्स नहीं मिला। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा संभाल के लिखना है। अम, एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी बाहर था। तो यहाँ पर हम लोगों को मेरा जी ऑफ एन जब आएगा तो 1/2 के साथ आएगा, तो मतलब वो 1 n+1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जी ऑफ एन सुधार देता हूँ। ये जी ऑफ एन आएगा यहाँ पर 1/2, 1 बाई, एक मिनट, हाँ। ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n+1 और ये बनेगा g ऑफ n। ओके, तो अब यहाँ पर समेशन करते समय 1 टू द पावर k लगाकर g टू द पावर g है, g माने हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर हाफ, हाफ टू द पावर n, n की जगह पर आएगा n-k+1 बराबर, n-k+1, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। अब यहाँ पर भी वैसे ही, अब वापस वही बात हो गई कि r है हमारा ये फंक्शन, बराबर। हमारा फंक्शन r यहाँ पर दिया हुआ है, r है हाफ, a है आपका 1, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 1/2। वो सब आप ऐसे ऐसे उसको बाहर लेते जा सकते हैं और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये देखिए समेशन बेसिकली तो हाफ है ही, हाफ टू द पावर n-k+1, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये बन गया है। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका एक्सपेंशन आपको लिखने को आना चाहिए। एक्सपेंशन आएगा इसका हाफ, अगर आप बाहर ले लेते हैं तो आपको वापस वही मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले फॉर्मूला हम देख लेते वापस, क्योंकि फॉर्मूला से ही ये बना है। ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला वापस यूज़ होने वाला है। a इंटू आर रेस टू n+1 माइनस a ओवर r-1। तो हमारा जो टर्म है यहाँ पर a है 1 इंटू आर रेस टू जो भी टर्म है, तो रनर जो भी है वो उतने तक जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर बन के आएगा क्या, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं वापस, एक ज़रा एक मिनट, हाँ। हाँ, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a है हमारा, देखिए फॉर्मूला था हमारा समेशन a r रेस टू जे आर रेस टू के, यानी आर रेस टू के गोइंग फ्रॉम 0 टू n।
अब यहाँ पर k गोइंग फ्रॉम k के बदले है n माइनस के प्लस वन, वो ठीक है, तो उसको जाने दो, वो पूरा r ही कंसिडर कर लो, वो पूरा नंबर ही r कंसिडर कर लो। अब क्या बनेगा, हमें वही देखना है कि ये कितने टर्म्स तक जाएगा। जैसे ही m1 0 होगा तो वो n माइनस वन से स्टार्ट होगा, बराबर। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर k को आप ज़ीरो डालिए तो k ज़ीरो डालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, k है ज़ीरो तो आपके पास हाफ टू द पावर n प्लस वन, फिर k है वन तो n, फिर k है जो भी वैल्यू, मतलब वो कम होते जाएगा, n माइनस वन प्लस एन सो ऑन। जैसे ही वो n बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, k जैसे ही n बनेगा तो आपके पास हाफ यहाँ पे पावर वन आ जाएगा, बराबर। तो यानी ये n प्लस वन टाइम्स एडिशन हो रहा है, n प्लस वन टाइम्स, n प्लस वन टर्म्स जो है उतने हैं आपके सामने, और हर एक के पावर में एक एक पावर बढ़ते जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या बन के आएगा हमारे पास, तो ये हमारा सीरीज ही बनेगा वापस, पर ज़्यादा टर्म्स है हमारे पास अब, ज़ीरो से लेके n प्लस वन टर्म्स तक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा हाफ माइनस वन, हम्म हम्म अगर हाफ कॉमन भी लेके करेंगे तो भी सेम ही आने वाला है। देखिए इसका समेशन आपको लिखना है, आप इसका समेशन अच्छे से लिखिए। समेशन अगर आप बराबर लिखेंगे तो आपको पूरा ये इसका हेल्प हो जाएगा। हाफ अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 रेज टू n माइनस वन एंड सो ऑन अप टू वन आएगा, बराबर। अब ये तो वही बात हो गई, वापस वही एडिशन है, तो दिस एडिशन इज नथिंग बट 1/2 1/2 outside, this is going to give me the answer 1/2 to the power n plus 1 minus 1 over 1/2 minus 1, right? So now you simplify this is 1/2 over minus 1/2, and then there is 1/2 to the power n plus 1 minus 1, that means it is 1 minus 1/2 whole raised to n plus 1। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इसमें। आई होप आपको ये समझ में आया हो। समेशन सॉरी z इनवर्स ऑफ z स्क्वायर ओवर z माइनस वन टू z माइनस वन, ये
इसको आपको ये ध्यान से करना है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। सारा ये बहुत सारे सम्स हमने देखे इसमें कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड। कॉन्वोल्यूशन इतना ही टॉपिक है। मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन के कच्चा चिट्ठा पूरा ख़त्म कर दिया है। इसमें सब बता दिया है कि क्या क्या करना है। कॉन्वोल्यूशन का ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। स्टेटमेंट टेक्निकल है, इसलिए बड़ा स्टेटमेंट है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिटेल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये है, ये दो नोट आपके सामने जो मैंने बताए हैं, these are the two main important notations which you have to remember. uh, First case and the second case, and the second case is what is more important because we are concerned with z inverse transform. Okay, so that, and then this definition of convolution of sequence is very important. Once you do that convolution sequence definition, that will help you. Another thing is these important formulas: the summation, the sum of first n natural number, the square of first n natural number, cube of first n natural number. These are very important. Then I have taken these examples. So this is my first example. So this is the first example. Then we saw how to handle this is the second example. Now second example में खास बात यह है कि दोनों फंक्शन सेम है, f of z सेम है, तो संभाल के करिए इसको। थर्ड एग्जाम्पल हमने ये देखा, और ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तक कि इसको कैसे हैंडल करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक समझ में आ गया है, और आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ हिट लाइक and share it with your friends. अगर आपको अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, एंड जो भी आपको सवाल है कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। चलिए, हमारा लाइव सेशन ख़त्म होता है अब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।